Very good morning to all of you. Today we are present here with the topics mirror formula and the linear magnification, which is chapter 10 science of class 10th. So today हम लोग पढ़ेंगे what is mirror formula and what is linear magnification and how to use these two things in solving numericals. Okay, so let's start with the mirror formula. So here we see that the mirror formula states that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So from this we just understand means what the mirror formula always gives the relation between the focal length of the mirror, the height of the image, the image distance and the object distance, because in our previous class we know that u stand for the object distance, that means distance of the object from the pole of the mirror. V stand for the distance of the image from the pole of the mirror, and small f stand for the focal length of the mirrors. So the mirror formula gives the relation between focal length, image distance and the object distance of the mirror. So this is all about the mirror formula. Next we talk about linear magnification. What is the magnification? Okay, what is your linear magnification? So according to definition of the linear magnification, it states that it is a ratio of the height of the image to the height of the object. मतलब जो linear magnification आपका होता है, this gives the relation between the height of the image to the height of the object. This hi stand for the height of the image, and this ho stand for the height of the object. Clear? Also we can define the linear magnification as the ratio of the object distance to the image distance. The ratio of the object distance to the image distance, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेशियो को भी हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं. सो फ्रॉम दिस डिफिनेशन वी कैन राइट m is equal to minus v by u. So here we studied two different definition of the linear magnification, and we consider this one as equation first and this as equation second. Here we see that the left hand side of both the equations are same. So from while solving this we get hi by ho is equal to minus v by u. Once again I repeat, this hi stand for the height of the image, this ho for the height of the object, this v stand for the image distance, and this u stand for the object distance. So these three formulas we have to study, and this formula is very useful while solving the numerical of the light chapter. Out of this 4, if 3 is given, then by using this formula we can find the fourth one. Okay, that means कि ये चार आप देख रहे हो, this is hi by ho is equal to minus v by u. तो मान लीजिए कि इस चारों में से कोई भी 3 देगा, तो चौथा आप आराम से इस चीज को आराम से निकाल सकते हो by using this formula. Okay, what the formula is? This is hi by ho is equal to minus v by u. Clear? Okay, next we have to talk about what is the relation between magnification, image distance and the focal length of the mirror. And this is what? This is m is equal to 1 minus v by f. When we have to apply this formula, इस formula को कब हम लोग इस्तेमाल करेंगे? जब किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में linear magnification या image distance या focal length, इस तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा तो तीसरा निकालना हो. दैट मीन्स कि आइदर linear magnification is given or the image distance is given or the focal length is given. इस तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा तो इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम तीसरा निकाल सकते हैं. सपोज image distance and the focal length is given, so by using this formula we can find the m, means linear magnification. So these are the formulas which are very important for the numerical point of view. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली लाइट चैप्टर के. ओके, कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है, समटाइम इट इज आस्क इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्निफिकेशन, the image distance and the focal length of the mirror. So we can write this relation. This is m is equal to 1 minus v by f. M stand for the linear magnification, v stand for the image distance, f stand for the focal length. And we have also studied
इन विच कंडीशन u is negative, v is negative, f is negative, u is positive, v is positive, f is positive, hi is positive, ho is positive, hi is negative, ho is negative. These all things we have studied in the previous class. Okay, कि जो u होता है आपका, that means कि from the concept of the what sign convention of the mirrors, we all know that in which condition these all things are positive or these all things are negative. किस कंडीशन में ये सभी के सभी जो आप जो वेरिएबल्स देख रहे हो ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं कि जो भी आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में सिंस द कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म द रियल इमेज, तो इन कॉनकेव मिरर u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ, hi मीन्स हाइट ऑफ द इमेज. दिस ऑल आर व्हाट नेगेटिव. ho इज पॉजिटिव, क्योंकि ho को क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग ऊपर रखते हैं. डेट्स वाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसीडर एज पॉजिटिव, और जो इमेज बनता है वो नीचे बनता है. दैट्स वाई हाइट ऑफ द इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव. वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, u दैट मीन्स की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u तो चाहे कॉनकेव हो चाहे आपका कॉन्वेक्स हो, दोनों में u आपका नेगेटिव होता है. आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हो. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द m द नेचर ऑफ द इमेज ऑल्सो वेरी, यानी कि m की डिफरेंट वैल्यू पे जो इमेज का नेचर जो आपका होता है वो भी वेरी करता है. ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है. तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट वी टॉक अबाउट फॉर द रियल इमेज, यानी जब इमेज आपका रियल हो, सो उस कंडीशन में क्या होता है, द m इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी m जो आपका होता है वो नेगेटिव होता है. अब क्वेश्चन ये है कि वाई द m इज नेगेटिव. सो एज वी नो the what formula of the m is, this is m is equal to what, this is hi by ho. we know the formula. तो आप जानते हो कि ये नेगेटिव तभी होगा जब इसमें से कोई एक नेगेटिव हो. दैट मीन्स कि आइदर hi और ho में से कोई भी एक नेगेटिव होगा, देन ओनली द वैल्यू ऑफ द m इज नेगेटिव. तो जब आपका रियल इमेज बनता है तो वी नो दैट कि वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द रियल इमेज इज ऑलवेज व्हाट, ऑलवेज इन्वर्टेड. यानी रियल इमेज जो होता है हमेशा क्या होता है, इन्वर्ट होता है. जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो जब रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वो आपका इन्वर्टेड बनता है, यानी कि उल्टा बनता है. तो ये हाइट अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो ये हाइट आपका नेगेटिव होगा. क्लियर. दैट मीन्स कि अगर हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में रियल इमेज आपका बनता है. तो द व्हाट फॉर्मूला ऑफ द m इज, दिस इज hi by ho. तो इस दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव होगा तभी m नेगेटिव होता है, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ द रियल इमेज टेक्स प्लेस. बिकॉज इन द केस ऑफ रियल इमेज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज इज फाउंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ द रियल इमेज दैट व्हाट इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फॉर द वर्चुअल इमेज. तो जानते हो वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनता है. दैट मीन्स द नेचर ऑफ द इमेज इज इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब होता है सीधा. सो इन केस ऑफ द वर्चुअल इमेज द m इज पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि आपका hi, फिर यहाँ मैं दिखाता हूँ, m इज इक्वल टू आपका hi by ho होता है. सो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप पॉजिटिव ले रहे हो तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज बोथ आर फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों के दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होते हैं. क्लियर कॉन्सेप्ट माय डियर. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इफ m इज इक्वल टू 1. अगर m आपका 1 है इसका मतलब क्या हुआ, तो आप जानते हो कि m इज इक्वल टू आपका hi by ho होता है. तो दोनों में से अगर दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल हो जाएं देन ओनली द वैल्यू ऑफ द m इज़ 1. यानी कि अगर hi की जगह hi लिखते हो और ho की जगह भी hi हो गया तो इसको कैंसिल करने पे आपका 1 आएगा. यानी कि द वैल्यू ऑफ द m इज इक्वल टू 1 इज़ पॉसिबल इफ़ हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा अगर इमेज बनता है तो इस कंडीशन में m का वैल्यू आपका 1 होता है. और ये आप जानते हो कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज इन द प्लेन मिरर, कि जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा आपका इमेज बनता है.
इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी आपको कॉनकेव मिरर में होता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पर रखते हैं, देन इन दैट सिचुएशन द इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द सी, इन विच the height of the image is always equal to height of the object. So if question ask कि at which condition m is equal to 1, so we can simply say that when the height of the image is equal to the height of the object, then only m is equal to 1, and this possibility can be erased either in the plane mirror or in the कॉनकेव मिरर. क्लियर. कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है. तो m इज इक्वल टू 1 का जो वैल्यू है, दैट मीन्स दिस पॉसिबिलिटी arise either in the plane mirror or in the concave mirror, because plane mirror and concave mirror both forms the image which is equal to the height of the object. In plane mirror, if we place the object at C, then this possibility arise. Sorry, in concave mirror, when the object is placed at C, then this condition arise. And in the plane mirror, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा आपका इमेज होता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इफ m इज मोर देन 1. अगर m का वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स कि जो इमेज बनेगा वो आपका काफ़ी मैग्नीफाइड होगा. मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा होता है. और आप जानते हो कि इमेज कब कब बड़ा बनता है, तो ये आपका तब बनता है, दैट मीन्स कि दिस सिचुएशन अराइज ओनली इन द कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, बड़ा बनाता है. सो m इज़ मोर देन 1 का मतलब हो गया हाइट ऑफ द इमेज इज़ मोर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस पॉसिबिलिटी अराइज ओनली इन द कॉनकेव मिरर. क्लियर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट m इज़ लेस देन 1. दैट मीन्स कि अगर m का वैल्यू आपको 1 से छोटा होता है तब क्या इसका मतलब होगा. सो इफ़ द वैल्यू ऑफ द m इज़ लेस देन 1, इट्स मीन हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि अगर m का वैल्यू 1 से छोटा होता है, इस कंडीशन में जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा. एंड वी नो दैट कि इमेज आपका कब ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, तो ये कॉनकेव मिरर में भी आपका ऐसा होता है और आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी आपका होता है. सो इफ क्वेश्चन आस्क इन विच ऑफ द मिरर्स दिस पॉसिबिलिटी अराइज, सो सिंपली वी टिक either in the concave mirror or in the convex mirror or both. That means कि ये concave और convex दोनों में होता है कि जो इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा किस किस मिरर में बनेगा. तो हम concave भी ले सकते हैं और convex भी लेते हैं, क्योंकि ये पता है हमें. ओके तो इस तरीके से ये मैग्निफिकेशन बेस्ड आपका टॉपिक था, और ये सब क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछेगा. तो इसको अच्छे से आप याद रखना कि in which condition m is positive, in which condition m is negative, what is meaning of m is equal to 1, what is the meaning of m more than 1, what is the meaning of m less than 1. ये सारे चीज़ को अच्छे से आप कवर करना. ओके, थैंक यू.